के बाद अगर कोई चीज बढ़ेगी तो वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा वहां पे। तो वाह, सोशल डिस्टेंसिंग और इकोनॉमी को वो साथ साथ चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मेट्रो चला रहे हैं, 20% ऑफ द ऑक्यूपेंसी जो है ना मेट्रो में सिर्फ जाएगी, तो जैसे 20% हिट होगी सर्किट ब्रेकर हिट हो जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ये हमारे पाकिस्तानियों की तरह नहीं कि वो हुआ लांडी में किसी को और बंद किया हुआ लाहौर इचरे में सारों को। चलें जी, अभी the team has just told me that we're live on Facebook, so let's begin. For everyone who's watching, Assalamu alaikum and good evening. This is a Metis Global event series. This is the first program of the event series and it's initiated and hosted by Metis Global, a leading financial data and distribution and solutions company. मेरा नाम निरान रहमान है. I'm the country head AWT Corporate and Institutional Distribution for Army Welfare Trust. I have a very, very esteemed and distinguished panel with me today. I have Mr. Tayyib Ijaz Qureshi, who is the CEO of Roshan Packages. I have Dr. Amjad Waheed Saab with me, who is the CEO of NVP Funds. And I have Muzammil Aslam with me, who is the CEO of Mafa Capital. Gentlemen, welcome to this talk. It's a pleasure having you. I hope we would have had this talk in better circumstances, but we are facing an unprecedented local and global crisis, and everyone is looking forward to hear your views on it. Talk मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करें. एक तो हमारा पाकिस्तान का मॉनेटरी सेक्टर है जिसमें सिग्निफिकेंट तब्दीलियां हमको नजर आई हैं इन द लास्ट मंथ लोन, और एक पाकिस्तान की रियल इकोनॉमी है जो प्रोडक्शन एलिमेंट ऑन द सप्लाई साइड बोथ एंड द डिमांड साइड, उसके ऊपर बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म के हालात हमारे सामने लेके आ रहे हैं. सो आई वुड लाइक तैयब साहब टू टॉक अबाउट द रियल इकोनॉमी. वी आर गोइंग टू टच ऑन द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमी एज वेल. So I would like to start off with Dr. Saab, or just to give us a small overview of what we've witnessed since this crisis has started. Dr. Saab, World Bank, according to the World Bank, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने पहले कभी एक टेक्निकल रिसेशन नहीं देखी, लेकिन इस क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान इस दफ़ा पहली एक रिसेशन हमको नज़र आई थी जब ये मुल्क बना था 1952 में, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि शायद हमारी इकोनॉमी जो है वो 1.3 और 2.2% से हमारा जीडीपी डिक्लाइन करेगा दिस ईयर. डू यू थिंक दैट दिस इज अ पॉसिबिलिटी, और क्या हालात अब इतने संजीदा हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को, एक डेवलपिंग इकोनॉमी को, एक रिसेशन का सामना देखना पड़े? जी निरान, थैंक यू सो मच. बेसिकली आई थिंक ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना है where 2020 में जो prediction है कि global economy is going to grow at negative, अब कोई projection 3% आ रही है, कोई 5% आ रही है. But the reason is because you know, we are not out of the crisis. You know, this is an ongoing situation and nobody knows where it's going to end. कुछ पहले ये उम्मीद थी कि जून तक सिचुएशन बेहतर हो जाएगी दुनिया में, मगर अब बेसिकली लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू एक्सटेंड बियॉन्ड दैट, और जो बेसिकली वैक्सीन आएगा या कोई क्योर आएगा, दैट विल बी समवेयर प्रॉब्ली क्लोज टू एंड ऑफ दिस ईयर. सो इट लुक्स लाइक ये जो 2020 है ये पूरा इसी तरह गुजरेगा. फिर इसमें एक जो ज़्यादा प्रॉबिलिटी ये भी है कि ये वेव्स आएंगी. So the first wave basically, you know, will flatten out, and then after a while, somewhere in September, October, there'll be a second wave which might be as strong or stronger than the first wave. So under these circumstances, very difficult to predict either the global scenario or the domestic scenario. What we know has happened is that you know, commodity prices have crashed by somewhere in the range of 40% to 80%. You know, Arab oil is down from $70 to like, you know, $13 or so. And so have the other commodities. Travel has suffered a lot. दुनिया की स्टॉक मार्केट्स गिरी थी about 30 to 40%. अब कुछ रिकवरी आई है. I think there was panic selling, so जितनी शायद गिरनी चाहिए उससे ज़्यादा गिर गई थी. और if you see recently तो US market में और even Asian markets में we are seeing recovery now because I think somewhere obviously this will end. So from that angle, I think there is now buying coming in, and same thing we are seeing in the local market as well. But the loss globally can be, you know, several 5 trillion or more. And I think domestically, if you look at, so
वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस साल हमारा जो बजट डेफिसिट है वो तकरीबन 9% ऑफ जीडीपी चला जाएगा, और रेवेन्यू का शॉर्टफॉल बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन will be 2% versus projected, or at best we'll collect about 3900 billion of taxes versus the initial target of 5500 billion. So luckily, I think in terms of IMF funding of what $1.4 billion, and then World Bank and ADB, etc., we're expecting $2 billion plus of funding coming in. IMF ka to paisa, what I've heard, has already come in. Yeah. So that's a bit of a relief. So I think जो एक worrisome चीज अभी जो IMF ने की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान पे कि they are basically saying कि next year का जो target है revenue का they're keeping it 5100 billion. That's a 30% increase over what we're expecting this year, about 3800 billion. Now in a situation where we're expecting कि next year the economy हमारी next fiscal year maybe it will grow maybe 0%, again depending on the situation, maybe -1%. If you're lucky and things come in hand, maybe +1%. So agar domestic economy is going to grow, let's say at 0%, and let's take inflation of assume 7% next year. So जब nominal आपकी economy 7% पे grow कर रही है और IMF कह रहा है कि आपकी revenue collection अगले साल 30% grow करनी चाहिए. So that's obviously, there's a mismatch, and that's just not possible. So I think it's time to have a serious discussion with IMF and try to renegotiate, our debt, or try to bring these, sort of numbers down. In terms of current account deficit, remittances we are expecting are going to suffer about $3 billion or so. Exports will be down, so from 24 billion, I think at best we'll do 20 billion. Next year 19 to 20 billion, so वहाँ भी थोड़ा loss होगा. But some of it will be covered because of the crash in commodity prices. We're expecting कि हमारी import $6 billion तक कम हो जाएगी, और हमारा जो current account deficit है वो तकरीबन $5 billion का होगा, which will still be manageable, which is within 2% of GDP. Remember, this was 14 billion just last year, and 20 billion the year before. So current account deficit is relatively in control. कुछ थोड़ा सा जो हमारा हज पे भी $1.5 billion का आउटफ्लो होता है वो नहीं होगा, कुछ भी ट्रैवल कम हो जाएगा, उम्रास कम हो जाएंगे, और उस सब का भी एक नेट बेनिफिट नजर आएगा. So that's a bit in terms of the global and domestic scenario. I can come back to it once we get comments from other panelists. Yeah, I'm going to, because we've started talking about the monetary sector, I'm going to go to Muzammil. Muzammil, आपको याद होगा, आपसे गुफ्तगू भी होती रहती है फेसबुक पे with regards to the role the central bank has played in this crisis. Now, पहले जो हमको 75 basis points का जो initial cut नजर आया था, there was a lot of talk about it, that is the central bank doing enough? Is the central bank doing enough? Market में लोग कह रहे हैं कि जी 75 basis points is not enough. But then in April, we have seen a 4.25% slash. Discount rate is in double digits, and I just want to share a list with you of all that has happened in 1 month alone by this state bank. Increased profit margins for international and domestic commercial banks for currency dealers to increase the margins for remittances to improve remittances. State banks on Monday said that development finance institutions would defer the principal amount of consumer loans for 1 year to facilitate borrowers. SBP has announced its incentives for tax-paying businesses. पहले इन्हें 4% refinance रखी थी employees के लिए, आज उन्होंने 4 से इसको 3% कर दिया for taxpayers. And now SBP will provide refinancing to banks at 0%. उन्होंने wages को deposit करने के लिए banks को इजाजत दे दी है कि उन employees के लिए वो bank accounts खोल सकें. जो FE25 की जो cash reserve requirement है वो 15% से उन्होंने 10% कर दी है. और जो recently they have instructed the suspension and distribution of declaring dividends for the lenders in the economy, all the lenders in the economy, commercial bank ho, microfinance ho, के quarter end March 31st 2020 और year end June 30th 2020 है, इसके dividends suspend कर दिए. So these, according to a lot of pundits, these are some of the most aggressive steps taken by a central bank to tackle this crisis in a monetary way. Thank you, Neran. सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि I am the part of जब स्टेट बैंक
जब भी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता है तो वो कुछ एनालिस्ट कम्युनिटी से मिलता है, तो आई एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ इट, और हम जैसे ही पोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो उससे मिलते हैं जाके। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, जब 17 मार्च को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई तो शाम 6 बजे हमारी मीटिंग स्टेट बैंक के बोर्ड रूम में थी गवर्नर से। तो गवर्नर ने एज यूजुअल मॉनेटरी पॉलिसी का अपना राउंड अप दिया और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का सेशन खुला। तो आई वाज द फर्स्ट वन हु आस्क्ड द क्वेश्चन, और मैंने उन्हें ये कहा छूटते ही कि आपने बहुत कम डिस्काउंट रेट कट किया। तो ही सरप्राइज्ड और उन्होंने कहा कि हाउ डू यू से दिस। मैंने कहा यू नो इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हुए हैं दे आर नॉट हैप्पी विद योर कट, एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग मच मोर हायर। तो उन्होंने क्या किया, एक सर्वे लगाया जो हमारी मार्केट में ब्लूमबर्ग और अक्सर जो न्यूज एजेंसीज होती हैं वो एक सर्वे लेती हैं बिफोर मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें उन्होंने सर्वे दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये देखो यार कोई भी 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एंड वी डिड मोर देन दैट। तो उसमें मैंने जवाब दिया कि एक्चुअली दिस वाज बिफोर 1 वीक सर्वे, एक हफ्ते में बहुत कुछ हो गया, तो आई थिंक यू हैव डन इट स्लो। अच्छा, लेकिन उसी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में जब उन्होंने हमें राउंड अप शुरू किया था तो उन्होंने एक हिंट दी थी कि सेंट्रल बैंक इज स्टैंड रेडी इफ देयर इज अ नीड फॉर फर्दर रिलैक्सेशन। तो वहीं पे मैंने हिसाब लगा लिया था, और जब मैं बाहर आया तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं और जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको मैंने बता दिया था कि इस दफा नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी का इंतजार नहीं होगा, इंटरिमली रेट कट जाएगा। तो सेंट्रल बैंक ने 17 मार्च से आज 22 अप्रैल है, आई थिंक जितने पॉलिसी एक्शंस इन्होंने इस छोटे टाइम पीरियड में लिए हैं, आई हैव नॉट सीन इन माय लास्ट 20 ईयर ऑफ करियर इन पाकिस्तान के कोई सेंट्रल बैंकर ने इतने एग्रेसिव और इतने प्रॉम्प्ट एक्शन लिए। ना सिर्फ उन्होंने इंटरेस्ट रेट साइड को देखा, दूसरी साइड पे लिक्विडिटी साइड को देखा, तीसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर को भी बचाया कि ये जो डिफॉल्ट्स ना हो जाए, चौथी तरफ बिजनेसेस को भी उन्होंने जो है सॉल्वेंट होने से बचाया। तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, और मैं आपको एक बात बताऊं कि शायद मैं इनको ये कहूंगा कि मुबारकबाद दूंगा कि शायद फेडरल रिजर्व ने भी हालांकि जितनी रिसोर्सेज और चीजों के पास है उस तरीके की चीजें, हम लिमिटेड रिसोर्सेज रिलेटिव टर्म में बात करूंगा, जितना हमारा सेंट्रल बैंक ने दिया। और उसकी शायद एक वजह ये भी थी कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुआ कि हमारे पास शायद हमारे पास बफर बहुत था और ऑप्शंस बहुत थे। बिफोर द फर्स्ट कट हमारा वर्ल्ड जैसे कहते हैं टॉप हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट था 13.25%। इसके अलावा जो अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थी वो भी काफी स्ट्रिंजेंट थी। तो लकीली हमारे सेंट्रल बैंक के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, और वो जो ऑप्शंस उन्होंने खोलना शुरू किए तो उससे मैं समझता हूँ कि मार्केट को बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस आ गया है, ना सिर्फ कैपिटल मार्केट्स बल्कि बिजनेसेस को भी। और मेरी बिजनेसेस से जब बात हो रही है तो वो काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आई थिंक अगर इस गवर्नमेंट की ओवरऑल आप देखें कि इन्होंने जो 1 महीने में जो चीजें अनाउंस की है, सेंट्रल बैंक ने आउट परफॉर्म किया इवन फेडरल गवर्नमेंट को। सूबाई हुकूमतें तो नजर ही नहीं आ रही। तो सेंट्रल बैंक अगर ये अपने पॉलिसी एक्शन ना लेता तो अभी जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि मार्केट जितनी गिरनी चाहिए थी उससे ज्यादा गिर गई थी तो रिकवर हुई है, शायद हमारी मार्केट पे रिकवर ना होती। हमारी मतलब सेंट्रल बैंक ने एक बहुत कॉन्फिडेंस दिया। और इसी की कंटिन्यूएशन में कल जैसे अभी आपके साथ जूम में इंटरेक्शन हो रहा है, कल स्टेट बैंक ने जो 2 पॉलिसी एक्शंस लिए थे तो उसके बाद मीटिंग नहीं हो सकी थी ड्यू टू कोरोना। तो कल उन्होंने जूम पे वही मीटिंग हमारे साथ कंडक्ट की। लेट मी टेल यू कि वो जो है 1 आवर 40 मिनट्स का सेशन था और इट वाज सो कॉम्प्रिहेंसिव। और जो लोग उस मीटिंग में थे, आई एम श्योर, मैं गारंटी करता हूं, दे केम आउट विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, नॉट ओनली ऑन द एक्सचेंज रेट फ्रंट, ऑल्सो ऑन इंटरेस्ट रेट फ्रंट, एज वेल एज ऑन द लिक्विडिटी फ्रंट। प्लस सेंट्रल बैंक ने कल साफ बोल दिया, हालांकि मैंने उन्हें कहा कि भाई आप इतनी तेजी से रेट कट कर रहे हैं, काइबोर 8% से नीचे आ गया, ये ना हो कि लोग गाड़ियां खरीदना शुरू कर दें, इंटरेस्ट रेट सस्ता है तो फिर इंपोर्ट बिल पे प्रेशर ये वो। तो ही रिप्लाइड टू मी, ही सेड कि देखो यार इस वक्त तो 70% इकोनॉमी बंद है, अभी हम ये चीजें नहीं देख रहे, वी वांट टू स्टार्ट दिस इकोनॉमी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं तैयब साहब की तरफ जाऊंगा क्योंकि you did mention that everyone seems to be happy with the support which the central bank has done, whether it is for refinancing or whether it is for the benchmark borrowing rate. तैयब साहब हमारे व्यूअर्स को समझाइएगा कि मॉनेटरी सेक्टर में तो काम हो रहा है, जैसे अभी मुजम्मिल डिस्क्राइब कर रहे थे और डॉक्टर साहब भी डिस्क्राइब कर रहे थे,
रियल इकोनॉमी में क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हमें दो डिफरेंशिएशंस नजर आ रही हैं। एक क्रिटिकल इंडस्ट्री जिसके अपने फिलहाल मसाइल हैं लॉकडाउन की वजह से, जहां पे लेबर की शॉर्टेज है, बीसीपीज की एक्टिवेशन नहीं हो रही। ऑन टॉप ऑफ दैट उनको प्रोडक्शन लाइंस उनके लिए आना बहुत जरूरी है, क्योंकि दे नीड, दे आर क्रिटिकल। और दूसरी वो इंडस्ट्रीज हैं विच आर completely shut down because of the lockdown with zero top line, literally zero top line, जिनका ज्यादातर पाकिस्तान के जो रिटेल सेक्टर है उसका नाम आता है। तो पहले उन क्रिटिकल इंडस्ट्री के साथ शुरू करते हैं और वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं और कैसे वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी प्रोडक्शन लाइंस कंटिन्यू वर्किंग टू मीट द डिमांड एट दिस इन दिस क्रिटिकल स्टेज। जी बहुत शुक्रिया। तो एक्चुअली जैसे हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे, तो दो तरह की इंडस्ट्रीज हैं जो कि पाकिस्तान में, एक वो जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिनको आप ओपन नहीं कर सकते, और एक वो इंडस्ट्रीज हैं जिनको गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ओपन करें। तो अब जो इंडस्ट्रीज ओपन हैं उनको जो चैलेंजेस हैं, नंबर एक तो देखिए कि जो उनकी सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो इशू है वो है एम्प्लॉयज की सेफ्टी। तो एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए उनको जितनी भी इंडस्ट्री में उनको घरों से लेकर आना और उनको फैक्ट्री तक सेफ्टी के साथ उनकी ट्रांसपोर्टेशन की जो इश्यूज हैं, फिर उनको लाकर उनकी मास्क उनको देना, और जो WHO की और जो भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो गवर्नमेंट की है उसके मुताबिक आपने उनको उनकी हिफाजत का ख्याल रखना है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टास्क जो है वो ये है। उसके बाद जो दूसरा इशू है वो दो तरह के इश्यूज हैं, एक है डिमांड का और दूसरा है सप्लाई का। तो जो डिमांड साइड पे जो इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड है उनके रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं, और जिनकी डिमांड नहीं है उनकी इन्वेंट्रीज ऑलरेडी मौजूद है लेकिन आप उनको सेल नहीं कर सकते हैं। और फिर तीसरी चीज ये है कि प्रोडक्शन जब हम करने जाते हैं तो उसमें आपको पता है कि रॉ मटेरियल्स चाहिए हैं, उसके अंदर आपको केमिकल्स चाहिए हैं, उसके अंदर आपको एलाइड ऐसी चीजें जो आपको चाहिए होती हैं, लेकिन वो इस वक्त इजीली अवेलेबल नहीं है। तो देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज जो कि हम फेस कर रहे हैं, और उसके अंदर फिर ये है कि बहुत से आपके एम्प्लॉइज हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम की यूज टू नहीं है। यानी हमारी कंपनी में तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की ऑप्शंस मौजूद हैं, इंटरनेट की फैसिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन बहुत से एम्प्लॉइज के घरों में इंटरनेट नहीं है, बहुत से तो उसकी वजह से कनेक्टिविटी का इशू है। लोग यूज टू नहीं है कि घर से बैठ के जब काम करना है तो वो किस तरह से करना है। तो ये जो सारा जो कोरोना का जो क्राइसिस है या जो ये जो मामला है, इसके अंदर बहुत से चैलेंजेस हैं और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब उनको दोनों को ही लेकर चलना है हमें। तो फिर एक और इशू जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रेन जो है वो हमारी बंद है। इसी तरह आप अगर देखें कि जो फ्रेट जो सी की जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो शिपिंग लाइंस हैं, उनकी मूवमेंट बहुत स्लो हुई है। हालांकि ऑयल की प्राइसेस तो बहुत शार्पली डाउन हुई हैं, तो फ्रेट जो है वो कम हो जाना चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चूंकि उनके पास कार्गो पूरा नहीं है तो शिप ने अपनी मूवमेंट्स जो है, शिपिंग लाइंस ने अपनी स्लो कर ली हैं। तो कार्गो यानी हम तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, और फ्रेट उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, किराए बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो ये वो चीजें हैं जो हम देख रहे हैं कि हमारी जो अगर डिमांड है भी तो सप्लाई हम नहीं कर पा रहे। तो ये थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं जो कि हम इस वक्त फेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कार्गो की बात की तैयब साहब ने। I just want to touch base on the real economy. It seems that we're working in silos, डॉक्टर साहब, और इसमें कुछ ऐसी हमें सेक्टर्स नजर आते हैं जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आपको कराची में पता है with respect to what the different traders are saying. So we are seeing some silos being operated, and we are seeing some sectors which are open and some sectors which are not open. I just want to touch base on how the government can help trigger demand, क्योंकि ये तो होता रहेगा. We have to keep the critical industries open, and the State Bank is doing what it takes to trigger demand, and they're doing what it takes to support the commercial banking system. What can be done to trigger demand in a pandemic? This is a challenge which the IMF has highlighted. This is a challenge which the World Bank has highlighted. Right.
whether it is for the real economy or whether it is for the monetary sector. जब तक corporate earnings नहीं बढ़ेंगी, हमारी markets को equilibrium नहीं मिलेगा. Oil आपने देख लिया क्या हुआ है. Oil primarily इस वजह से हुआ है because we have never seen demand actually hit rock bottom. It is a very difficult question, I understand, but maybe it will happen only after we take this crisis. When we claim victory over this crisis. But what small steps can be taken, not by the state bank, which has done what it has to do, but by the government to facilitate the little demand there is in the economy? Okay, good point, Niran. Let me just first, take a minute and give you just the situation where we stand. एक तो ये है कि when before this crisis came, we were in a difficult situation. हमारे reserves were $11 billion, और even Bangladesh के reserves at that time were $30 billion plus. India के reserves were $470 billion plus. So we were already in a IMF program in a tight situation. Basically, Pakistan Institute of Development Economics, they came out with a study. We have a labor force of 63 million. So based on their research, इसमें से 35 million जो लोग हैं out of 63 million, 3.5 crore, they are vulnerable के, in terms of the job. और especially इसमें से जो तकरीबन half and 16 million, they are at a very serious risk of losing jobs, and some have already lost jobs. और especially जो agriculture तो फिर भी चल रहा है, और इवन जो अभी डॉक्टर हफीज पाशा की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ऑल्दो उन्होंने दिखाया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ विल बी डाउन 20% दिस क्वार्टर, एंड सर्विसेज विल बी डाउन 15%, मगर एग्रीकल्चर को उन्होंने +1% दिखाया. मगर जो नॉन एग्रीकल्चर है, वहाँ पे देयर आर 10 million plus jobs which are at risk of some have been laid off and some might be laid off. So वो एक situation की enormity, I think first of all हम देख लें. दूसरा अगर हम देखें small and medium enterprises, there are 3.8 million small and medium sized businesses, और based on SDPI report, Sustainable Development Institute, उसमें से 3.8 million में से 1 million जो है small and medium companies, they may not survive this. Okay. 25% of the small and medium businesses may not come out of this situation, और जो बाकी 3 million के करीब रह गई, वो तभी आएंगी जब उनको कुछ गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगी. अब गवर्नमेंट सपोर्ट जो दे सकती है वो दो फॉर्म में दे सकती है. एक तो लिक्विडिटी सपोर्ट है, और इसमें ऑलरेडी अगेन स्टेट बैंक ने एक चीज अनाउंस की है कि जी small companies को they are willing to give financing at an attractive rate, at a low rate through banks. मगर उसमें जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि बैंक्स जो है रिस्क अवर्स, वो ये जो कंपनीज छोटी होती हैं, ये इतनी डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, इनके पास कोलैटरल नहीं होता, इनकी हिस्ट्री नहीं होती, और जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता कि गवर्नमेंट some type of लॉस शेयरिंग करे, लॉस इन केस ऑफ डिफॉल्ट, खुदा न खास्ता जो लॉसेस होते हैं वो फिर गवर्नमेंट शेयर करे विद बैंक्स, तो बैंक्स हैव नो इंटरेस्ट ऑफ गोइंग आउट, रीचिंग आउट टू दीज स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस. तो और उससे लिंक मैंने अभी बात की कि कितने ज्यादा मतलब ये टॉकिंग अबाउट 16 million people who can lose their jobs. So I think liquidity is one of the issues, especially for SMEs. और इसमें I think the government needs to come out with some type of a fund that will ensure कि जो अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट्स होते हैं तो कुछ हद तक वो फंड कवर करेगा, ताकि टू एनकरेज बैंक्स टू गिव आउट दोस लोन्स. अच्छा, एक्सपोर्ट्स को अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स में 65% ऑफ ऑर्डर्स हैव बीन कैंसल्ड और पोस्टपोन. 35% ऑर्डर्स रह गए. ठीक है, ऑल्दो वो भी जो सिंध में एक्सपोर्ट्स हैं वो तो काफी हद तक बंद हैं. अब सुना है कुछ थोड़ा गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि दे कैन स्टार्ट. अब उसमें जो एक प्रपोजल थी, जो मेरा एक प्रपोजल थी जो मैंने फॉरवर्ड की थी, कि बेसिकली अगर अप टू 20% ऑफ एक्सपोर्ट्स और फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर दे गवर्नमेंट, ठीक है, तो हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स अगर हम ले लें 24 बिलियन, तो 20% ऑफ दैट कम्स टू अबाउट $5 billion, करेक्ट, विच इज अबाउट 800 billion rupees. और अगर 800 बिलियन की फाइनेंसिंग अवेलेबल हो जाए टू दिस एक्सपोर्ट सेक्टर, अभी
आगे जाते हुए हमें लग रहा है जिस तरह अभी मुजम्मिल ने बोला कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से भी 1-2% से जा सकते हैं, तो रफली कह लें कि 7% पे आ सकते हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ्स। और अगर गवर्नमेंट 2% पे फाइनेंसिंग देती है तो गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो 5% की दे रही है। 5% ऑफ ऑन 800 बिलियन इज 40 बिलियन। ठीक है, 40 बिलियन इज लेस देन 0.1% ऑफ जीडीपी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो अगर देखें तो गवर्नमेंट के लिए 40 बिलियन का अमाउंट बहुत कम है, बिकॉज इट इज ओनली 0.1% ऑफ जीडीपी, मगर इससे 800 बिलियन की लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी फॉर एक्सपोर्टर्स। इसी तरह जो डोमेस्टिक डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, बिजनेसेस, जिस तरह ये तैयब साहब का बिजनेस है, इन्होंने पिछले साल 1.2 ट्रिलियन की जीएसटी पे की है, सेल्स टैक्स पे की है। अगर गवर्नमेंट उतना ही अमाउंट इनको फाइनेंस कर देती है एट 2%, व्हिच इज अगेन अ 5% डिस्काउंट, तो 1.2 ट्रिलियन पे जो सब्सिडी है 5% की, वो बनती है 60 बिलियन, व्हिच इज अगेन क्लोज टू 0.1% ऑफ जीडीपी। मगर इसमें 1.2 ट्रिलियन की लिक्विडिटी क्रिएट हो सकती है फॉर द डोमेस्टिक सेक्टर। दिस इज मोर द डॉक्यूमेंटेड सेक्टर, बिकॉज ये वो लोग हैं जो सेल्स टैक्स दे रहे हैं। और अब ये टाइम आया है जहाँ पे इनको गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है, वरना ये आमतौर पे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं थ्रू टैक्सेस। सो बेसिकली फॉर 3 सेक्टर्स एसएमईज देयर हैज टू बी अ प्लान जहाँ पे उनको फंडिंग बैंक्स दे सके, गवर्नमेंट को उसमें लेना पड़ेगा और वो लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। और दूसरी साइड एक्सपोर्ट्स हैं, जहाँ पे अगर 20% ऑफ एक्सपोर्ट्स तक उनको फंडिंग दे दें तो दैट वुड बी अबाउट 800 बिलियन। और फिर तीसरा जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है जो सेल्स टैक्स देता है, एटलीस्ट टू दैट एक्सटेंट 1.2 ट्रिलियन का रफली सेल टैक्स साल का देता है, एटलीस्ट उतने अमाउंट तक उसको उनको लिक्विडिटी दे दें। So these are the steps in terms of liquidity that the government, in my view, needs to take. I'll come back to other steps maybe in the next round. That's fantastic, Dr. Saab. There are 3 significant, you've obviously thought a lot about it before coming on, because there were 3 very critical and direct methods, suggestions for the government of Pakistan on how to tackle the demand side. और इसमें तैयब साहब भी का मैं फीडबैक इसके ऊपर लूंगा on how whether his rate of borrowing should actually, for a corporation, their rate of borrowing should actually be benchmarked with the amount of corporate tax or revenue tax which the company gives. But before we go to that, Muzammil, I just want this. I just want IMF की जो हमने 1.4, 1.39, 1.4 billion जो हमने secure कर लिया है in terms of the emergency relief package. And we seem to be on course for the EFF as well, according to the IMF. I know Dr. Saab has got his reservations कि शायद अभी EFF के targets, खासकर जो tax collection के targets हैं, they're still very very aggressive for next year over 5 trillion. और अभी बहुत मुश्किल है कि हम 4 ट्रिलियन क्रॉस कर दें by the end of the fiscal year. तो उसके साथ एक डेफिसिट क्रिएट हो गया। अब IMF कह रहा है कि दिस इज द ग्रेट लॉकडाउन। अब वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये मुख्तलिफ इदारे हैं, लेकिन IMF जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बेरिश है compared to the World Bank when they've talked about the Great Depression and the Great Lockdown. 2007 को उन्होंने बीट से हटा ही दिया, because 2007 we saw negative growth of 0.1%. IMF is saying global growth will be negative 3%. They are saying that $9 trillion of the global economy is going to be wiped out, and the recovery is probably not going to be V-shaped or W-shaped. It is going to be a long U, a huge big U. And they've talked about a global fiscal stimulus. ये नहीं हो सकता कि मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ stimulus packages दे रहे हैं. They've talked about global coordinated fiscal stimulus. Now, when we talk about these things, we've heard excellent suggestions for the local policymakers. But how is Pakistan going to survive when we are talking about a negative 3% and a $9 trillion wipeout of GDP? How can we ensure that we still remain competitive in an environment like that? अच्छा नेरान, इसमें जो सबसे पहले तो मैं IMF की बातों में लार्जली एग्री करता हूं, लेकिन IMF की फोरकास्ट हमेशा से जो है ना लूज होती है। अभी आपको याद होगा लास्ट ईयर जब हम जुलाई में IMF प्रोग्राम में आए थे तो IMF वर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक मोर देन 17-18 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का। इन्फ्लेशन के नंबर भी बहुत वियर्ड से टारगेट कर रहे थे। फिर उन्होंने जो है पाकिस्तान का जो टैक्स का टारगेट है वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक, जैसे कहते हैं कि ग्रोथ वो 2.5 और 2.4% बोल रहे हैं,
4.8 और करोड़। टैक्स का टारगेट जो है 50% हमारा बढ़ा दिया, ठीक है। तो आईएमएफ थोड़ा सा ना, मैं हमेशा से एक चीज मेरे आईएमएफ के बारे में ये है कि आईएमएफ की बर्ड आई व्यू बहुत अच्छी है। आईएमएफ की ग्लोबल एक पॉलिसी होती है, वो हर एक पे वो एज्यूम कर देता है, लेकिन उसकी ऑन द ग्राउंड जिसे कहते हैं फोरकास्ट हमेशा मिस करती है, क्योंकि वो रिलाई करता है यहाँ की लोकल अथॉरिटीज पे, यानी कि यहाँ की लोकल सोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, दूसरी बात ये कि आई एग्री विद आईएमएफ ऑन दैट फ्रंट के इट इज गोइंग टू बी ए ह्यूज यू शेप रिकवरी। प्राइमरीली उसका एक वजह है, मैं उसको बड़ा आसान अल्फाज में समझा दूंगा कि दुनिया में जिसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा डिसबैलेंस आ गया था बिटवीन सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर। जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल भी आप ले लें, पाकिस्तान की मईशत में 53% सर्विसेज सेक्टर है, एग्रीकल्चर इज 21% और मैन्युफैक्चरिंग इज 17%, ठीक है। अब अगर हमारी एग्रीकल्चर जो 21% है वो खराब हो जाए ना, तो पूरी मुल्क की इकोनॉमी खराब हो जाती है। आपको भी अंदाजा होगा, महंगाई भी हो जाती है, 10 चीजें हो जाती है। तो इसी तरीके से दुनिया जो है ना, दे आर लॉट मोर डिपेंडिंग ऑन सर्विसेज सेक्टर देन यू नो द रियल कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर। जैसे अब इस पेंडेमिक के बाद आई डोंट सी के ग्लोबल टूरिज्म, ग्लोबल जैसे कहते हैं कि कम्यूट, एयरलाइन बिजनेस, ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि एवरीथिंग इज गेटिंग लोकल एज वेल। तो आई डोंट थिंक सो कि सर्विसेज सेक्टर की रिकवरी, बल्कि इनफैक्ट उसकी जो है कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रही है बहुत बड़े लेवल पे। और क्योंकि पाकिस्तान जैसा इकोनॉमी 53% ऑफ द इकोनॉमी इज सर्विसेज सेक्टर। आई एम श्योर यूएस, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट यूएस, यूके और इस तरह के मुल्क जो हैं, they are more than 65 to 70% of their economy is services based, technology based, financial services, ठीक है, tourism, etc etc etc। तो आईएमएफ की जो बेसिस है वो है इंटरनेशनल नॉलेज जो इन ममालिक में हो रहा है। पाकिस्तान एक बड़ा सीधा सादा जिसे कहते हैं ना कि देसी मुल्क है, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बिल्कुल बेसिक है। आज भी हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं, नॉन प्रोसेस, बस आया वो मुंजी से सेट करके कर दिया। आज भी हम जो है टावल एक्सपोर्ट करते हैं, मेजर हमारी एक्सपोर्ट टावल है। आज भी हम बेडशीट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। गारमेंट्स पे हम बहुत लो एंड गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। आज भी हम चमड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। आज भी हम फ्रूट और वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी है ना, और दिस इज एग्जैक्टली वी वर talking in yesterday's interaction with State Bank. State Bank भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान, क्योंकि ये blessing in disguise हो गई, although there is nothing to be proud of, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया की क्लोज इकोनॉमीज में से, जहाँ पे FDI टू GDP बहुत लो है, एक्सपोर्ट टू GDP बहुत लो है। करेक्ट। तो इट्स ऑल जो हमें अपनी इकोनॉमी को किक देना है, ये स्टार्ट देना है, इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन कि हमारा लोकल लॉकडाउन कब खत्म होता है और हमारी प्रायोरिटीज कितनी चेंज होती हैं। आया अगर हम एग्रीकल्चर पे फोकस करना वापस से शुरू कर दें और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे शुरू कर दें, तो आई थिंक कि हम लीस्ट कोरिलेटेड होंगे। जो दुनिया जो जिस तरफ स्लो डाउन की तरफ जा रही होगी, शायद हम उतने स्लो डाउन ना हो। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कल स्टेट बैंक ने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताया कि जो आईएमएफ की फोरकास्ट है उसमें पाकिस्तान इज अमंग द फ्यू इकोनॉमीज जो इस साल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है 2.5% ग्रोथ पे वापस आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे जो इम्बैलेंसेस है वो भी जो है, जैसे जो हम बड़ी एग्जांपल देते थे बीच में, बांग्लादेश की, इंडिया की, ये वो दे आर करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, बफर पॉइंट ऑफ व्यू से, अनएम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एट द मोमेंट दे आर मच मोर वल्नरेबल देन अस। तो ये एक चीज है जो हमें, जिसे कहते हैं कि देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अब जो डॉक्टर साहब ने जो तजावीज दी है वो 100% मैं कहता हूँ करेक्ट है। गवर्नमेंट हैव टू मेक श्योर कि पाकिस्तान में जो है 80-100 कॉर्पोरेट्स नहीं है। There are thousands, hundreds of thousands of them are small businesses. मैं और डॉक्टर साहब एक और इंटरेक्शन का पार्ट थे कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के, उसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड के सीईओ बैठे हुए थे, शहजाद दादा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा आफ्टर दिस क्राइसिस पाकिस्तान की इकोनॉमी ही सीइंग कि ई कॉमर्स, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी से जा रही है
और उसमें जब ये जाएगी तो बैंकों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा टू गेट कनेक्ट विद द स्मॉल बिजनेसेस। और जब उनकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू ऑनलाइन चीजें होंगी तो बैंक के लिए बड़ा आसान हो जाएगा, उनके साथ बैंकेबल हो जाएंगे बिजनेसेस। तो आई थिंक देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी बिहाइंड ऑल दिस। I just want to discuss the small medium enterprises and हमारे जो कॉटेज इंडस्ट्री की जो सेगमेंट है पाकिस्तान में विद तैयब साहब। तैयब साहब, जो मेट्रोपोलिस के जो हाल हैं और जो स्मार्ट लॉकडाउन्स और लॉकडाउन्स की तरफ जो हम जा रहे हैं, वी हैव सीन देयर इज अ व्यू कि हमको काउंटर माइग्रेशन नजर आए बहुत से ममालिक में। इंडिया में आपको नजर आ रही है कि सून पीपल विल गो बैक टू वेयर दे कम फ्रॉम एंड दे विल लुक फॉर वर्क ओवर देयर। डू यू थिंक कि ऐसा फिनोमेना हमको पाकिस्तान पे नजर आ सकता है कि फाइनली हमारी जो वर्कफोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा जोग्राफिकली डिसेंट्रलाइज हो जाए? और जैसे अभी मुजम्मिल कह रहे थे कि बैंक्स विल नाउ ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल ऑटोमेशन टेकिंग प्लेस, micro finance banks are already there, but we've seen the telecommunication sector now integrate with the commercial banking system for microfinance lending. Do you think कि एक situation आ सकती है जहाँ पे in the near future or in the longer term हमको एक ऐसा situation नजर आए where we see cottage industries and SMEs getting that credit line and providing employment not in the metropolises but in other geographic parts of Pakistan? तो सबसे पहले तो मैं मुजम्मिल साहब से एग्री कर रहा हूं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और बहुत मुद्दत से हमने इस अहम बहुत बड़ी जो हमारी स्ट्रेंथ है इसको हमने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। इसके हवाले से हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। तो मैं ये IMF से भी और स्टेट बैंक से भी और मुजम्मिल साहब से भी एग्री कर रहा हूं कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक है कि यील्ड के इश्यूज हैं, एक्सटेंशन सर्विसेज के इश्यूज हैं, लेकिन पाकिस्तान में फल हैं, सब्जियां हैं, चावल है, गंदुम है और ये हम सब चीजों और इसमें बहुत बड़ा हमारा जो लेबर है हमारी इन्वॉल्व है। तो आपकी बात दुरुस्त है कि ये जब हमारे लोग वापस चले गए हैं अपने अपने गाँव में और अपने अपने इलाकों में, तो अगर वहां पर हम ये जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अगर हम उनको इन्वॉल्व करें और उनको एजुकेट करें और उनको उसके हवाले से, तो पहले गवर्नमेंट की कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है इस वक्त उसने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा पैकेज दिया है, लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट को इस बात का इदराक होना चाहिए कि इस वक्त ग्राहक नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कस्टमर नहीं है, कोई घर खरीदने के लिए इस वक्त नहीं है। तो आपको इस वक्त मूवमेंट करनी है, सर्कुलेशन करनी है, जो है ना मईशत का पहिया वो चलाना है। तो मईशत के पहिए को चलाने के लिए आपके पास बहुत ही आसान तरीका है कि नंबर एक तो ये कि हम एग्रीकल्चर पर अपनी तमाम तवज्जो दें और देखें, क्योंकि हमारा ग्रुप जो है हम पिछले 40 साल से पाकिस्तान से फल और सब्जियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमारी कंपनी जो है इसी सेक्टर में पैकेजिंग प्रोवाइड कर रही है, सवात है, वाना है, वजीरिस्तान है, ये हमारे पास दुनिया के बेशुमार बेहतरीन फल मौजूद हैं, सब्जियां मौजूद हैं, लेकिन हम ना उनको एक्सपोर्ट कर पाए हैं बहुत बड़ी तादाद में। गो कि हमने तो काफी एक्सपोर्ट किया लेकिन उसमें बहुत से इश्यूज हैं, कोल्ड चेन के इश्यूज हैं, मार्केट टू फार्म के इश्यूज हैं, तो देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज। हमारी होलसेल मार्केट्स उस तरह की नहीं है, हमारा मिडलमैन जो बहुत स्ट्रांग है। सो आप एक तरफ फार्मर जो है वो प्रॉब्लम में है, दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है उसको प्राइस बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन उसके बावजूद यानी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि बगैर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट के, किसी गवर्नमेंट की हेल्प के बावजूद वो काम कर रहा है और पैसे अर्न कर रहा है और उस पर कोई बहुत बड़ा इस आफत का असर भी नहीं आएगा यानी इकोनॉमिकली। लेकिन अब मसला ये है कि जो अच्छा इसमें कोई बहुत ज्यादा फाइनेंसिंग भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। गवर्नमेंट को तरजीहात करनी पड़ेंगी, यानी एक प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेंगी। एक तो नंबर एक ये कि एग्रीकल्चर के हवाले से टैक्सेशन को बिल्कुल जीरो पे कर देना चाहिए। जो भी हमारी किसान है, जो हमारा लेट्स सपोज मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर आप फल और सब्जी को पैक करें तो पैक करने के ऊपर आपके ऊपर सेल टैक्स अप्लाई हो जाता है। अगर आप उसको बगैर पैकिंग के बेचेंगे तो उस पर सेल टैक्स नहीं है। अच्छा, इसी तरह आप अगर बाकी सेक्टर्स को भी देखें, जैसे पैकेजिंग सेक्टर है या जैसे और भी सेक्टर्स हैं, इसके ऊपर जो सेल टैक्स है, इसके ऊपर जो इनकम टैक्स है, फिर उसके ऊपर एक टर्नओवर टैक्स आपने 1.5% लगाया हुआ है।
अच्छा, गवर्नमेंट को ये टैक्सेस कैसे इकट्ठे होंगे अगर इकोनॉमी चलेगी नहीं, इंडस्ट्रीज चलेंगी नहीं? तो गवर्नमेंट को स्टिमुलस पैकेजेस देने जरूर दें, इंटरेस्ट रेट नीचे किए हैं, बहुत जबरदस्त काम किया है, रुपये की डिवैल्यूएशन जो है वो बेहतर हो रही है, रुपये की एप्रिसिएशन हो रही है माशाल्लाह। तो जहां बहुत से इकदाम लिए हैं, गवर्नमेंट को फौरी तौर पर टैक्सेशन को खत्म करना चाहिए, ये कम कर देना चाहिए, लो कर देना चाहिए, ताकि पहिया चले। अभी इतने सारे अदारे हैं, इतने ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है कि काम करना तो यानी मुश्किल से मुश्किल तरीन बना दिया गया है। तो इसको अगर आसान बना देंगे तो मैं ये समझता हूं कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेंथ हैं। हम ना सिर्फ पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की बेस पर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज को खड़ा कर सकते हैं अपने मुल्क में। इसको देखिए, जब तक हम अपने मुल्क में अपनी प्रोडक्ट्स को डेवलप नहीं करेंगे, यहाँ मार्केट्स नहीं डेवलप करेंगे, तो फिर हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकेंगे। और मैं आपको बात बताऊं कि ये जो यूरोप के अंदर जो आपस में डिस्प्यूट हुए हैं और जो उनके यहाँ पेंडेमिक के जो सूरत हाल है, उनकी जो सप्लाई चेन है वो बड़ी बुरी तरह मुतासिर है, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर्स मिलेंगे। हम यहाँ से फल और सब्जियां और जो फूड ग्रेन्स है ये एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा हम विजन थोड़ा सा अपना ब्रॉड करें और हम सिर्फ पुरानी टेक्सटाइल और सीमेंट और शुगर और ये इन चीजों से निकलें और हम थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम दें, लोगों को काम करने का मौका दें। जगह जगह जो जकड़बंदियां जो आपने लगाई हुई है सिस्टम के अंदर, उनको से निकालें। और तीसरी बात यह है कि जो अभी जो सारी सिचुएशन है, ये बात बिल्कुल मुजम्मिल साहब की बात से मैं एग्री करता हूं कि अब सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, यानी डॉक्यूमेंटेशन खुद ब खुद हो जाएगी आपकी। यानी इन्वॉल्व करें, हर चीज को डॉक्यूमेंटाइज करें, लेकिन शरह जो टैक्स है ना वो नीचे लेकर आए। टैक्स की शरह बहुत ज्यादा है, टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, ये नीचे ले आएंगे तो आपकी जितनी मंडियां हैं, जितने ग्रोवर्स हैं, ये सब इन्वॉल्व हो जाएंगे और पहिया चलेगा मईशत का। अनफॉर्चुनेटली मईशत का पहिया रुका हुआ है और वो टैक्स और वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से सर नहीं चलेगा वो। अभी फॉर द टाइम बीइंग लोगों को जो है थोड़ी उम्मीद चाहिए है, थोड़ा सा पहिया चलाने की जरूरत है। ये 1.5% जो टैक्स है ना सर, टर्नओवर टैक्स, ये तो बहुत ही इस्तेसाल, यानी आपने सेल की है, आपने लॉस किया है और उसके ऊपर आपको 1.5% टैक्स जरूर एफबीआर को जमा करना है। तो एफबीआर की जो नई वाइस जो चेयरपर्सन आई हैं, वो बड़ा उम्दा काम कर रही हैं, उन्होंने रिफंड देने शुरू कर दिए हैं, उनकी यहाँ सोच में भी तब्दीली आई है। लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी खजाना से रिक्वेस्ट है, वजारत से, कि आप ये टैक्सों की शरह को नीचे लाएं। आपको टैक्स को इकट्ठा होना ही नहीं है, तो आप इकोनॉमी को तो रिवाइव करें ना। आई थिंक बहुत बहुत शुक्रिया तैयब साहब। मेरा एक सवाल डॉक्टर साहब को था पहले कि व्हाट डज द, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी डू टू ट्रिगर डिमांड? मॉनेटरी पॉलिसी can control demand and it can trigger demand, and the American economy, the US economy, to trigger demand, they went through quantitative easing, and we saw the Fed fund rates go to zero, and then we saw Europeans do quantitative easing, and finally थोड़ी सी demand trigger हुई थी, और then the real estate sector picked up. What can the government do? मैं तो सीधी सादी economics की बात करता हूँ. Fiscal policy is direct taxation, and we need to, and Dr. Saab mentioned it earlier on in the talk, that as far as our FPR tax target of 5.8, and if it is going above 5 trillion next year, it is time to negotiate with the IMF and try to at least bring down the sales tax and bring out the income tax and bring out the corporate tax, so people at least give them the chance to consume. At least जो उनकी जो spending habits है, उनकी जो consumption patterns हैं, जो बहुत तब्दील होंगे in the near future, जब inshallah when we defeat this virus, they need to be given a chance to consume for the economy to recover. और इसमें corporates की भी बात आ जाती है और इसमें consumer की भी बात आ जाती है. The State Bank governor has told Muzammil he's not worried कि auto sales ऊपर जाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि हालात ही नहीं auto sales ऊपर जाने के लिए, because of the amount of taxations which are in place. So we need to give demand a chance, and when we have to give demand a chance, on the fiscal side, the government really needs to look at the taxes which they have in place and increase the tax bracket. Anyways, I'm going to start taking some questions from the floor. I've got many. पहला सवाल जो मैं लूंगा, क्योंकि हमने डिस्कस भी करना था और मैं डॉक्टर साहब को ही थ्रो करूंगा, वो पीकेआर पे है. पीकेआर में हमको वॉलेटिलिटी नजर आई है और सिग्निफिकेंट नजर आई है. 2.6 बिलियन जो हमको नजर आया था, that was really hot money and it left, and now it is back, and some people, analysts, see that is going to be back for a longer term now.
because it has taken a position in the 1-year paper. So you've seen around 200 million odd come back. The central bank feels that foreign portfolio investment is a market-based currency. Foreign portfolio investment is a significant benchmark for a market-driven exchange rate, and we've seen now the currency reacting to that, and maybe the 1.4 billion which we secured yesterday has a little bit to do with it. But one thing is for sure, इस क्राइसिस ने हमको ये जरूर बता दिया है कि the PKR after a long time, मेरे भी काफी देर हो गई है कवर करते हुए पाकिस्तान को, PKR now is a market driven currency and its benchmarks are FDI, FPI and certain infos coming. And Dr. Saab, the question is, where is the currency? That is the question. एक जो बहुत बड़ा स्टेप और बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप फाइनली पाकिस्तान ने लिया है कि we are basically moving towards a market driven exchange rate. हमेशा कोई ना कोई एक ब्यूरोक्रेट या फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नर स्टेट बैंक बैठ के फैसला करता रहा कि जी रेट क्या होना चाहिए, ऐसे है। और अब दुनिया सब दे हैव मूव्ड टू अ मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट। तो ये जो स्टेप था ये, और यही वजह कि अगर आज आप हमारी एक्सपोर्ट देखें, इंडोनेशिया, मलेशिया और हमारी एक्सपोर्ट एक ज़माने में बराबर होती थी, आज उनकी एक्सपोर्ट $200 बिलियन पर पहुंच गई है और हम अभी 24 या 22 अरब डॉलर पर हैं। तो यही है कि हमने करेंसी को ओवर वैल्यूड रखा, और अब जबकि मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट आ रहा है तो इससे उम्मीद ये है कि एक्सपोर्टर्स को भी फ़ायदा रहेगा और इंपोर्ट्स भी थोड़ी सी कंट्रोल में रहेंगी। और बेसिकली आई थिंक व्हाट स्टेट बैंक शुड इंश्योर कि जो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो 100 से ऊपर ना जाए। बेसिकली जो इंटरनेशनल परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर एक मुल्क में इन्फ्लेशन 7% है और दूसरा आपका जो ट्रेडिंग पार्टनर है वहाँ पे इन्फ्लेशन 2% है, तो आपको अपनी करेंसी को 5% जो इन्फ्लेशन का डिफरेंशियल है उससे कम करना है। सो उस हिसाब से अगर हम देखें कि अगर हमारी अब इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड, अभी एक तो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्लोज टू 100 है, तो एक टाइम पे अब से 2-3 साल पहले 125 तक चला गया था, तो हमारी करेंसी ओवर वैल्यू। अब हमारी करेंसी फेयरली प्राइस्ड हो गई है, तकरीबन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 100 के करीब है। अगर हम जस्ट गोइंग बाय रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, अगर हमारी इन्फ्लेशन लेस से रहती है 7% और हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, यूएस है, यूरोप है, वहाँ 2% रहती है, तो हम अगर साल में 5% भी डिवैल्यू कर दें तो दैट शुड बी फाइन। अच्छा, नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिकली जो इस टाइम ये है कि क्योंकि IMF से कुछ पैसे $1.4 बिलियन आए हैं, बाकी वर्ल्ड बैंक, ADB वगैरह से आने हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसका एक जो सेंटिमेंटल वाइज भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। फिर जो जिस तरह पहले बात कर रहा था कि हमारा जो पैसा बाहर जाना है इन टर्म्स ऑफ हज पे जो हमारा $1 बिलियन 1.5 बिलियन जाता है, ट्रैवल करते हैं लोग, उम्रे पे जाते हैं, वो इस साल वो खर्चे नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से भी हमारी जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन है मार्केट में वो बेहतर है, और उसी वजह से करेंसी पाकिस्तानी रुपी थोड़ा अप्रिशिएट किया है। तो अभी मेरे ख्याल में इट इज़ फेयरली प्राइस जहाँ पे है, मगर ग्रेजुअली क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन अगर 2% और दुनिया में इन्फ्लेशन यूरोप अमेरिका में 2, तो हमें डिवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं है, मगर क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड भी हमारी इन्फ्लेशन तकरीबन 7-8% रहेगी, तो 5-6% साल की डिवैल्यूएशन मोस्ट प्रोबेबली होगी, ताकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कंपेटिटिव रहे और हमारी इंपोर्ट्स कंट्रोल में रहे, इतनी सस्ती ना हो जाए कि दोबारा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्ड होने लगे। Right. Thank you for answering that question. If Muzammil is still online with us, Muzammil, there's another question over here which is very interesting. जब से ये हमने इमरजेंसी रिलीफ पैकेज सिक्योर किया IMF से, और हमने डेट रीस्केड्यूलिंग की बातें फ्रॉम आवर पार्टनर्स से भी हमने शुरू की हैं, the question from Furqan is Pakistan has got relief in debt payments. However, there is a chance that once things become relatively normal after a year or so, inshallah, Pakistan will be in a tough situation to repay their debt payments once again, because economy के पहिए जो हैं, they will take time because of the U-shaped recovery. It will take time for Pakistan to grow, and once again FPR की बात आती है। In other words, जो कह रहे हैं, will these stimulus packages create another external crisis? थोड़ा सा बहुत आगे चले गए हैं वो। he's looking at things in a post-COVID world when this debt is going to come haunt us and the world will open. Personally, I think the recovery is going to be a lot easier because you have to give demand a chance. I think लोगों के consumption patterns are going to change and it's going to be a little bit easier
when people come out and the world finally opens up, people will consume like they've never consumed before, because this is not a leverage crisis. This is a crisis which was created because by mother nature. तो मेरे ख्याल में हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स बहुत तब्दील होंगे और हमारी कंजम्पशन पैटर्न्स में बहुत एग्रेशन नजर आएगी, शायद पाकिस्तानियों में नहीं लेकिन दुनिया में और जगहों में who enjoy consumption, उनमें काफी एग्रेशन नजर आएगी आपको, और उन कंजम्पशन पैटर्न्स बिहेवियर की वजह से शायद इस रिकवरी में उतनी देर ना लगे जो 2007 में लगी थी, because people will have that disposable, people will want to consume at a much higher frequency than in 2007. But what he's saying is, could this be a debt trap for Pakistan, this crisis in a post-COVID world? देखिए, मैं चीज़ों को इस तरीके से देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने आज अगर 100 रुपए किसी के देने और मुझे अपनी मंथली मेरी इनकम जो है मेरी एक्सपेंसेस से कम है, तो इफ आई नीड टू बोरो, तो मेरा जो है नेट डेट जो है 100 रुपए से बढ़ता रहेगा, तो मैं ऑटोमेटिक इसमें आप देख, हाँ जी, ये जो पोस्ट कोविड सिचुएशन है इसमें आप कल स्टेट बैंक ने भी हमें बताया कि जो पाकिस्तान का जो डिक्लाइन है फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट से, रेमिटेंसेस से, उससे कहीं बड़ा ऑफसेट कर रहा है इंपोर्ट, क्योंकि ऑयल प्राइसेस एंड अदर कमोडिटीज प्राइसेस आर कमिंग डाउन। और स्टेट बैंक की प्रोजेक्शंस के हिसाब से स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं जो अभी 11 अरब डॉलर है, वो 24 से 25 अरब डॉलर देख रहे हैं बाय 2024। हाँ, तो इससे एक साफ बात नजर ये आती है कि वी डोंट नीड टू बोरो मच एक्सटर्नली टू फाइनेंस आवर कंजम्पशन, क्योंकि अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो 19 अरब डॉलर 2017 को हिट कर गया था, अगर वो 1 और 1.5 अरब डॉलर में, जैसे आज भी आपको पता है मार्च के नंबर आए करंट अकाउंट के जस्ट $6 मिलियन डेफिसिट, 2.7 आया है। नहीं, वो तो 9 मंथ्स का, सिर्फ मार्च की बात करो, सिर्फ ओनली मार्च $6 मिलियन, विच इज फ्लैट, जीरो एक तरीके। तो इसकी वजह से हमारी जो नेट डेट एक्यूमुलेशन है इन द मंथ्स और इन द इयर्स टू फॉलो, अगर यही हालात इस तरीके से रहते हैं इंटरनेशनली, तो वो इतना ज्यादा नहीं है, तो एज सच हम डेट ट्रैप की तरफ नहीं जा रहे। दूसरा, G20 को लेकर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। G20 में एक होता है मल्टीलैटरल लोन, एक होता है आपका पेरिस क्लब और एक होता है नॉन पेरिस क्लब। ये 3 चीजें हमारी हैं जो G20 के मेंबर से मोरलेस हमें डेट आता है। जो हमारा IMF और उनके लोगों, IMF और मल्टीलैटरल्स को जो पे करना है हमने अगले 6 महीने में, वो है $1.5 अरब डॉलर, और जो हमने पेरिस क्लब को पे करना है वो $750 मिलियन है। तो ये कुल मिला के रफली कह लें $2.5 अरब डॉलर है। जो $12.5 अरब डॉलर का फिगर आ रहा है, उसमें जो है 6 से 7 अरब डॉलर चाइना के और सऊदी अरब और UAE के, वो हमारा पहले ही रिस्केड्यूल हो गया था। जब हम IMF प्रोग्राम में जा रहे थे तो IMF ने कहा था कि आप अपनी पार्टनर कंट्री से रोल ओवर करवाएं और हमें इंश्योर कर दें। तो एक्चुअली हमारा जो फंसा हुआ डेट है वो $2.5 अरब डॉलर ही है जो हमें इससे मिलना है। अच्छा, वो $2.5 अरब डॉलर अगर हमारा डेफर हो रहा है तो वो 2022 के ऑनवर्ड्स हमें पे करना है। तो जो हमारी नेक्स्ट ईयर की डेट पेमेंट्स है से वो बढ़ नहीं रही, प्लस हमें एडिशनल डेट लेना नहीं पड़ेगा टू फाइनेंस आवर करंट अकाउंट डेफिसिट। तो मैं समझता हूँ कि हम एक्सटर्नल साइड के डेट में नहीं फंस रहे। दूसरा, विद द कमिंग बैक टू द इनिशियल पॉइंट जब आपने स्टार्ट किया था कि डिस्काउंट रेट 450 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, इससे जो हमें फिस्कल स्पेस मिल रही है वो 1000 बिलियन रुपीस की मिल रही है। अगर आप सेकेंडरी मार्केट्स के रेट देखें तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी मच मोर हायर, 1250-1300 अरब। तो वो डोमेस्टिक सेकेंडरी मार्केट के रेट्स हम दिखा रहे थे ऑन द स्क्रीन, आज भी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है ऑल अक्रॉस द बोर्ड एवरीवेयर। जी, तो वो जो है ऑन द बेसिस ऑफ दैट गवर्नमेंट के पास एक फिस्कल स्पेस, इफ गॉड फॉरबिड जैसे तैयब साहब टैक्स रिलीफ मांग रहे हैं, कह रहे हैं टैक्स ना लो हमसे, अगर टैक्स नहीं कलेक्ट होता और कुछ चीजें हो जाती हैं, तो वो एक कम से कम गवर्नमेंट के पास जिसे कहते हैं कि एक फिस्कल स्पेस क्रिएट हो जाएगी। तो ऑल इन ऑल, जैसे मैंने पहले कहा था, मैं इसी तरह सम अप करूंगा कि वी नीड टू स्टार्ट आवर इकोनॉमी एज सून एज पॉसिबल। 92% ऑफ आवर इकोनॉमी इज डोमेस्टिक, तो ये सारा का सारा हमारे हाथ में है। अनलाइक अदर ग्लोबल पार्टनर्स, उनकी बहुत ज्यादा चेन लिंक्स है एक दूसरे के मुल्कों के साथ। Do you think कि अगर हमें, if we tackle this virus correctly, coming back to the healthcare sector and specifically,
Do you think if we tackle this virus correctly and we get our numbers in control, we do massive testing, we keep our industries open, we do smart lockdowns, जो सारी जो strategies जो government कर रहे हैं, don't you think countries which have fought it the best, their goods will be open for the future? जैसे तैयब साहब कह रहे हैं, agriculture में एक बहुत बड़ा scope है, not only in the region but for the West as well. So if you tackle it right, if you come out as one of those countries who's defeated the virus in an efficient and effective manner, don't you think that it can be a competitive edge for us in the global world as well? I agree we were a closed economy, but is this an opportunity? Tayyib साहब, मैं आपको फेंकता हूँ. This is just it's an out of the box question, क्योंकि ये हो सकता है कि जिन ममालिक ने जहाँ पे इम्पैक्ट कम हो, उनका जो उनके गुड्स की जो डिमांड है वो शायद बेहतर हो सके. नहीं, आप देखिए ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब कतर पर सैंक्शंस लगी और सऊदी अरब ने उनका सारा तरफ से बॉर्डर बंद कर दिए, तो उनको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया, उनको खाने पीने की और रोजमर्रा की जो अशिया थी वो उनके पास शॉर्ट हो गई. तो उन्होंने फिर पूरे जहाज भर भर के पूरी दुनिया से चीज लेकर आए और अपना जो है वो यानी प्रॉब्लम सॉल्व किया. तो मेरा मकसद कहने का ये है कि आखिर ये सारी दुनिया में इंसानों ने जिंदा तो रहना है, और अपनी जो हुआ ये था कि जब ग्लोबल इकोनॉमी हुई तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत से मुल्कों ने डिपेंड किया दूसरे मुल्कों के ऊपर. फॉर एग्जांपल जैसे स्पेन है, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, तो स्पेन पूरे यूरोप को सप्लाई कर रहा था. इसी तरह मैक्सिको अमेरिका की बहुत सी रियासतों को फल और सब्जियां प्रोवाइड कर रहा है. तो बहुत से जो है ना पॉकेट्स हैं जो कि अफ्रीका इसी तरह बहुत से मुल्कों को सप्लाई कर रहा है. तो अभी ये होगा कि आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है. अगर हम अगले 5-6 महीने मेहनत करें और अपने लिए एक स्ट्रेटजी डेवलप कर लें, तो हमारे पास मौसम है. देखें ना, मौसम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिशें उसी तरह हो रही हैं, जमीन मौजूद है हमारे पास, लेबर मौजूद है हमारे पास. तो अगर हम इनको यानी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें और अपने आप को पहले डोमेस्टिकली अपनी सप्लाई चेन को इंप्रूव करें, और फिर हम उसको इस प्रोडक्ट को इतना कामयाब करें और इतनी खूबसूरत बनाएं कि वो दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल हो. आप अनकरीब देखेंगे कि हम चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. आप अनकरीब देखेंगे कि बहुत से मुल्कों को हम सप्लाईज कर रहे होंगे. सो मैं तो काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ. नो डाउट कि इस वक्त हम एक क्राइसिस की सूरत हाल है, हमारे बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो कि हमारे पास आ रही हैं. हमारे पास यंग जनरेशन है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो यंग लोगों पर मुश्तमिल है, और उनके अंदर जज्बा भी है. उनके पास अगर हम थोड़ा सा उनको डायरेक्शन दे दें तो वो अगर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी और यंग जनरेशन और जो रियल बिजनेस है, जो रियल इकोनॉमी, इसके दरमियान में कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है. मसलन एक आईटी का जो बच्चा है जो स्टार्टअप करना चाहता है, उसके पास कोई रियल आइडिया नहीं है. वो फैंटेसाइज करता है, वो फेसबुक को सोचता है, वो कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बनाना चाहता है कि जिसकी कोई डिमांड नहीं है. तो अभी मैंने एक किसी साहब को कहा, मैंने कहा यार तुम फल सब्जी की कोई इसका काम शुरू करो. कहता है ये तो काम ही इतना अच्छा नहीं है. तो हमारे यहाँ जो बेसिक जो प्रॉब्लम है कि बेसिक आइडिया को लें, टेक्नोलॉजी को और यंग जनरेशन को कनेक्ट करें. सो देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो कि आपके सामने आ रही हैं, और जिससे हम ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे, लोगों के बिजनेस भी चलेंगे और पाकिस्तान भी आगे इस क्राइसिस से निकलेगा. Tayyib Saab, I'm going to take that as your concluding comments because they were so positive, and they had some advice for the younger generation as well. And they had you talked about the disconnect between the production sector and the automation sector. So I think summarized so well that I'm going to take that as your concluding comments. I don't think we can get better advice for the youth. Dr. Saab, I'll take your concluding comments as well. I really like what Tayyib Saab said because he talked about the real economy, and he talked about the disconnect which we've seen in production. हमारा production sector in the last 1 month during the lockdown, we started producing things जो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे. Whether it is the medical research labs, whether it is our SMEs, or whether it is the retail industry moving into producing masks. We've realized the importance of production and traditional forms of business. And my personal opinion is that we are going to head towards a more decentralized traditional form of business, and we're going to be concentrating more on production in a post-COVID-19 world. Your concluding remarks, and what advice do you have for everyone who's watching? अगर एक conducive business environment government create कर दे तो
ये जो सब ख्वाब है, किसी के एक्सपोर्ट ऑफ फूड का ख्वाब होगा, किसी का टेक्नोलॉजी का होगा, किसी का लेदर का होगा, किसी का एजुकेशन का होगा, ये सब पूरे हो जाते हैं. So the real key is कि Pakistan is a very I mean, it's full of entrepreneurs. We're a very so people are hardworking and they come out with good ideas, but it's a conducive environment. और इसमें मेरा ख्याल है जो बात तैयब साहब ने भी की थी कि basically we are now taxed already heavily taxed country. अगर आप हमारा सेल टैक्स रेट देखें 17% पे, that needs to become brought down. Corporate rate हमारा इस टाइम emerging markets में one of the highest है, और कई किस्म के टैक्स हैं. बट अभी जो मुझे जिस तरह मैंने पहले कहा कंसर्न ये है कि IMF कह रहा है कि और 30% टैक्स को अगले साल बढ़ा दो. तो रियली आई थिंक व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज फोकस ऑन. देखिए, आपने बजट डेफिसिट कम करना है तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप टैक्स बढ़ाएं या आप खर्चा कम करें. अनफॉर्चुनेटली खर्चा कम करने पे ध्यान कम है और बहुत ज्यादा बेहतर तरीका है रादर के टैक्स बढ़ाते जाए. जितना आप टैक्स बढ़ाएंगे उतना इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, फ्यूचर में टैक्स कलेक्शन और कम हो जाएगी. तो इसमें आप ये देख लें जो स्टेट और एंटरप्राइजेस हैं इनका लॉसेस जो हैं और इनएफिशिएंसीज ये ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन पर ईयर हैं. इनको प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है. जो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हैं इसमें जो डिस्कोस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनको तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर. अगर सिर्फ बेसिकली टैक्स बढ़ाते रहे तो ये जो सब ख्वाब है लोगों के कि किस तरह वो क्या करना चाह रहे हैं अपने, वो सब के सब पूरे नहीं हो सकते. So that to me is the key factor. Yeah, and for that we do sit with the IMF. Dr. Amjad Saab, thank you very much for your time today, and I hope to see you on one of these again very very soon. Muzammil, are you there or are you left? Yes. Muzammil, I just want your closing remarks as well. Three of our viewers have asked this question for you and Dr. Saab. It's a standard question. स्टॉक मार्केट कैसे लग रही है? अब 2-3 लोगों ने पूछ लिया है तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ ही लूं. But it's been volatile. This month has been volatile and it really hasn't been the market's fault because we've seen it overreact because of a May contract in NYMEX. Now again, the central bank may have done something to support the lending community, but is that actually good for investors who are invested in the stocks and banking? We have seen analysts struggle to forecast corporate earnings for each sector because each company has a different BCP policy, and there are some companies which are critical and there are some industries which are not critical. So just some high-level comments on the stock market, and for me it's very volatile. So good luck with answering that question. देखें, वैसे तो for the last 3 years whoever is in the market वो जो है he or she is struggling to make money. एक महीना अच्छा है तो 2 महीने खराब है, तो नेट बेसिस पे जो है nobody has made money. उसकी एक वजह ये थी कि पिछले 3 सालों में equity was not a preferred asset class because of the higher interest rates, volatile exchange rate, etc. Correct. अब given के now we move from stagflation से deflation पे चले गए, low growth, low interest rates. So this is the time where equity becomes attractive और वो preferred asset class होती है. तो I can say, वैसे तो Dr. Saab is the right person to answer, but as a macroeconomist, I can at least say this is the right time to get into the market. But एक चीज याद रखिएगा, you cannot catch the bottom, you can catch the values. और That's what I was. जो अभी current prices हैं उसमें values हैं. हमारे जो लोगों का mindset है वो for a day two और हफ्ते की trade. Just to act like devil's advocate, how is the market going to have a long-term bullish trend if we are struggling to see a growth in corporate earnings? और ये मेरा सवाल है, because I'm still trying to figure out when I read company research reports on how this is going to happen. We have the disconnect between the monetary and the real economy. It's been showing in the bullish behavior which we're seeing in the economy, but at some stage or the other, corporate earning saturations is going to have its impact on the stock market. देखिए, डिपेंड करता है. अभी आज ही की बात बता देता हूँ कि January to March is not at all good for oil sector, right? Oil prices वगैरह ये वो. Correct. But आज oil companies के रिजल्ट आए, PPL का रिजल्ट आया, it outperformed.
₹6 के करीब क्वार्टर की अर्निंग। POL के अभी अर्निंग आई है ₹18 क्वार्टर की, और इनकी जो प्राइसेस हैं इट हैज डाउन मोर देन 50%। तो द पॉइंट इज कि मार्केट ने अनसर्टेनिटी को प्राइस इन किया और उसने जो है यूनिफॉर्मली प्राइस इन कर दिया, और ये नहीं देखा कि किसका कितना अर्निंग पोटेंशियल है। अभी लोग फिक्स इनकम से कमा रहे थे 13% बैंक में रख के, अब उनको 6% भी नहीं मिलेगा। तो अब बहुत सारी आज भी स्टॉक में कंपनीज हैं जो 10, 11, 12% डिविडेंड देती हैं। तो आई विल सी के जो है पहले जो है लोग डिविडेंड यील्ड को कैच करेंगे, फिर जिनकी इंटरेस्ट रेट से हिट कर रही थी कंपनीज, उनकी आगे एक्सपेंसेस कम होंगे तो वो थोड़ा सा रिकवर करेंगे। तो द पॉइंट इज कि द टाइम इज हियर। अब वेट एंड सी है कि किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करती है। we'll leave it to our viewers to interpret that as how they like. Dr. Amjad Bhai Saab, thank you very much for joining us, and we hope to see you again. I will be in touch with respect to the feedback we have received, and on behalf of Metis Global as well, I'd like to thank you for joining us. Muzammil, always a pleasure. Your views are always taken with seriousness, and we always look forward to having our talks, and we hope to see you again as well. Tayyib Ijaz Qureshi Saab, all the way from Lahore. I hope to come visit Lahore and see you one day. Let's hope that day is soon, that we meet in person. Tayyib Saab, thank you very much for joining us. On behalf of Metis Global, I'm Niran Rahman. I am signing off. Do give us your feedback on Facebook on how this talk was, and we will continue having these sponsored by Metis Global. Thank you very much, everyone. Allah Hafiz. Thank you, sir.